Learn English through story. Hazrat Suhaib रज़ियल्लाहु अन्हु coming to Islam. हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना. हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु and Hazrat Ammar रज़ियल्लाहु अन्हु became Muslims at the same time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was staying at Arqam's रज़ियल्लाहु अन्हु place when they both came separately with the same intention of embracing Islam and met each other at the door of the house. हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु भी हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ही के साथ मुसलमान हुए. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर तशरीफ़ फरमा थे कि ये दोनों हज़रात अलहदा हाजिर खिदमत हुए और मकान के दरवाज़े पर दोनों इत्तेफ़ाक़िया इकट्ठे हो गए. हर एक ने दूसरे की गर्ज़ मालूम की तो एक ही गर्ज़ यानी इस्लाम लाना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद होना दोनों का मक़सूद था. सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु also suffered very much at the hands of his persecutors like other poor Muslims of that time. At last he decided to emigrate to Medina. The Quraysh would not tolerate this, and soon after this departure a party went in pursuit to bring him back to Mecca. As the party drew near, he shouted to them, "You know that I am a better archer than all of you. So long as I have a single arrow left with me, you will not be able to approach me, and when I finish all my arrows, I shall fight you with my sword, as long as it is in my hand. If you like, you can get my money which I have left in Mecca, and my 2 women slaves in lieu of me." And they agreed. सुहेब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए और इस्लाम लाने के बाद जो उस ज़माने में उस ख़लील और कमज़ोर जमात को पेश आना था वो पेश आया. हर तरह सताए गए, तकलीफ़ें पहुंचाई गईं. आखिर तंग आकर हिजरत का इरादा फरमाया तो काफिरों को ये चीज़ भी गवारा न थी कि ये लोग किसी दूसरी ही जगह जाकर आराम से ज़िंदगी बसर कर लें. इसलिए जिस किसी की हिजरत का हाल मालूम होता था उसको पकड़ने की कोशिश करते थे कि तकालीफ़ से नजात न पा सकें. चुनांचे उनका भी पीछा किया गया और एक जमात उनको पकड़ने के लिए आ गई. उन्होंने अपना तरकश संभाला जिसमें तीर थे और उन लोगों से कहा कि देखो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम सब से ज़्यादा तीर अंदाज़ हूँ. जब तक एक भी तीर मेरे पास बाकी रहेगा तुम लोग मुझ तक नहीं पहुँच सकोगे, और जब एक भी तीर न रहेगा तो मैं अपनी तलवार से मुकाबला करूँगा, यहाँ तक कि तलवार भी मेरे हाथ में न रहे. उसके बाद जो तुमसे हो सके करना. इसलिए अगर तुम चाहो तो अपनी जान के बदले में अपने माल का पता बता सकता हूँ जो मक्का में है, और 2 बांदियाँ भी हैं, वो सब तुम ले लो. उस पर वो लोग राज़ी हो गए. He told them the whereabouts of his money, and they allowed him to proceed to Medina. At this, Allah revealed the following verse of the Quran to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. And of mankind is he who would sell himself seeking the pleasure of Allah, and Allah has compassion on his bondsmen. उस पर वो लोग राज़ी हो गए और अपना माल देकर जान छुड़ाई. उसी बारे में आयत पाक وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ नाजिल हुई. तर्जुमा: बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के वास्ते अपनी जान को ख़रीद लेते हैं और अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान है. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was at the time at Quba.
When he saw Hazrat Suhaib radiallahu anhu coming, he remarked, "O good bargain, Suhaib." Suhaib radiallahu anhu narrates, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was eating dates at that time. I also joined him in eating. One of my eyes was sore. He said, "Suhaib, you are taking dates when your eye is sore, but I am taking them by the side of the other eye, which is not sore, O Prophet of Allah." I replied. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was much amused with my retort. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुबा में तशरीफ़ फरमा थे। सूरत देख कर इरशाद फरमाया कि नफ़ा की तिजारत की सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खजूर नोश फरमा रहे थे और मेरी आँख दुख रही थी। मैं भी साथ खाने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आँख तो दुख रही है और खजूरें खाते हो। मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आँख की तरफ से खाता हूँ जो तंदुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर हंस पड़े। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु was very generous and he spent his money on others most lavishly. Umar radiallahu anhu once told him that he was rather extravagant. He replied, "But I spend only where it is right." When Hazrat Umar radiallahu anhu was about to die, he expressed the wish that his funeral service be led by Hazrat Suhaib radiallahu anhu. हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े ही ख़र्च करने वाले थे, हत्ता कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनसे फ़रमाया कि तुम फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि नाहक़ कहीं ख़र्च नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का जब विसाल होने लगा तो उन्हीं को जनाज़ा की नमाज़ पढ़ाने की वसीयत फ़रमाई थी।